My colleagues Shweta and Gurpreet are joining us to help us with more details on this. Let me come to you, Shweta, first. That's a big step and decision by the Punjab governor to stop the wastage of public money. What do the people have to say on this over the end of luxury travel and stay for the Chandigarh bureaucrats? Well, that's absolutely correct, Riyanka. In fact, we are reporting from the iconic spot of Mumbai. That's from the selfie point, CST building, and we have few taxpayers with us. And when it comes to Punjab governor specifically talking about the wasteful expenditure of public money, let me quickly cut across to few of the taxpayers here. Sir, how far do you think that when Punjab governor says that when bureaucrats are traveling through business class, they are staying in five-star hotel, it is a waste of public fund? यस ऑफकोर्स ये बेस्ट ऑफ पब्लिक फंड है। जो हमारा पैसा है, जो हम टैक्स देते हैं, ये पैसा हमारा प्रॉपर यूटिलाइज किया जाए। और जो उन्होंने डिसीजन लिया है काफ़ी अच्छा डिसीजन है, हम सहमत है वो डिसीजन से। और ये सारे स्टेट्स में होना चाहिए, ज़रूरी लागू होना चाहिए कि to happy to this decision to your come in Punjab. Come okay. on So Punjab. that's an important point of what this gentleman has made. We also have a ma'am here. She was talking to us about the post and the security as well. मैम ये बताइए कि ये फैसला कितने हद तक सही है? क्या ये महाराष्ट्र या अन्य राज्यों में लागू होना चाहिए? मतलब मेरा मानना ये है कि जब मीन्स ये पोस्ट मिलते हैं तो उन लोगों की रिस्पेक्ट, हार्डवर्क, इसी से वो आगे जाते, तो वो डिज़र्व करते हैं कुछ फैसिलिटीज़ और कुछ ही है। बट कुछ हद तक फैसिलिटीज़ तो हर जगह मिलते हैं। वो सिंपल होटल, वो 5 स्टार हो, तो मिडिल ऑप्शन एकदम पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक होटल्स भी नहीं, मीन्स नॉर्मल होटल्स भी नहीं, बट मिडिल का ऑप्शन चूज करेंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। क्योंकि शायद ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वाला थोड़ा सा यानी वो लग्जरी हटा दी जाए। हाँ, कुछ हद तक लग्जरी हटा दी जाए जो ज़्यादा यूटिलाइज करती है पैसा, और वो मतलब बिल्कुल बिल्कुल। Well, you know, she has made an important point stating that it should not be way lavish or luxurious, but at the same time that designation and post should be considered by the government. Sir, a quick question to you. How far do you think that the decision which has been taken is right? नहीं, डिसीजन बहुत अच्छा है। ये डिसीजन होना ही चाहिए था, और ये इधर नहीं, ये हर जगह होना चाहिए। ये हर जगह होना चाहिए। All right. Also, we have few students also, they understood our topic, they understood Mirror Now's concern as well, and they also nodded for the same that yes, it's a right decision made. Well, while we understand that Mumbaikas are all in support for the decision which has been taken by the Punjab governor, right. They also have a concern talking right. about the post, the security as well. Back to you, Riyanka. All right, Shweta, stay on with us, and also thanks to get us the details and the voices of people there. Let me go across to my colleague Gurpreet, who is joining us from Chandigarh. Gurpreet, the Chandigarh administrator and Punjab governor Banwari Lal Purohit banned the IAS officers stay in five-star hotels in Delhi and travel to the national capital by air, end to luxurious travel and stay. What do the people have to say? And of course, what are the details that you're gathering, because you spoke to the governor himself? Well, yes, of course. Not only in Chandigarh, all over nation, we have seen that the governor decision has already sparked a debate. Here, if we can talk about Chandigarh, the people, they are more interested to recover that money from the officer, or some of the leaders from the Congress. They are with us. We will talk to them. One of the general secretary from Chandigarh Congress, we will talk to him to understand what does he feel about this decision. We have seen, हमने देखा कि चंडीगढ़ में जो चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, पंजाब के गवर्नर, उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि जितने भी ऑफिसर ट्रैवल बाय एयर करते थे या 5 स्टार होटल में रहते थे, वो सब बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि पब्लिक मनी है, टैक्स पेयर मनी है, जो लोगों में यूज़ होनी चाहिए। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये देर से उठाया गया, लेकिन सही कदम है। ये कदम बहुत पहले उठा लिया जाता तो अच्छा होता। जैसे अब चंडीगढ़ के बारे में मैं आपसे बात बताता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन का हाल देख लीजिए कि सड़कें टूटी पड़ी हैं, इन पे खर्चा नहीं कर रहे हैं। बस स्टॉप ऐसे बनाए हैं, सालों इंतज़ार कराया कि उसका डिज़ाइन बना रहे हैं। ना वहाँ कोई धूप से बच सकता है, ना बारिश से बच सकता है। थोड़ी सी अगर बारिश पड़ जाए तो शहर झील बन जाता है। इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते ये बिल्कुल भी। पैसा तो यहाँ खर्च करना चाहिए ना।
ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स को चाहिए वहाँ पर ट्रेन्स हैं, बसेस हैं, तो इनको यूज़ करना चाहिए। वहाँ इतने भवन बने हुए हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, कितने भवन बने हुए हैं, उनको यूज़ करना चाहिए। ये तो फिजूल खर्ची है। हर दूसरे दिन ये यहाँ से चल पड़ते हैं, बाई एयर जा रहे हैं, कभी एग्जीक्यूटिव क्लास में जा रहे हैं, कभी 5 स्टार होटलों में, ये बिल्कुल गलत है। तो ये बिल्कुल गलत है, लेकिन अगर देखा जाए तो लगातार जो पब्लिक सेंटीमेंट्स हैं यहाँ पे, क्योंकि आप भी काउंसलर हैं यहाँ पे, कांग्रेस से काउंसलर है, तो पब्लिक सेंटीमेंट्स कहती है कि रिकवरी भी करनी चाहिए, एक्शन भी लेना चाहिए। आपको क्या लगता है? गुरप्रीत जी, देखो, सिक्के के दो पहलू होते हैं। हर बात के, हर डिसीजन जो भी हम लेते हैं, हम महामहिम ने जो भी डिसीजन लिया हम उसके साथ हैं, लेकिन इसमें दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। पहली बात तो ये कि जो पब्लिक की हार्ड अर्निंग का पैसा, उनके टैक्स का जो पैसा है, उसकी फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए, हम इसके बिल्कुल साथ हैं। लेकिन इसमें एक दूसरी बात भी है, कई बार हमें एमरजेंसी में रेड्स करनी पड़ती है। जैसे आपने देखो पिछले दिनों हमारा जो चंडीगढ़ का साइबर सेल है, उसने सबसे ज़्यादा जो केस है वो क्रैकडाउन किए हैं। अगर हम कई बार ये वेट करेंगे बाई ट्रेन ही हम फलानी स्टेट तक पहुँचेंगे, तो शायद उसमें हमें 2 से 3 दिन 4 दिन भी लग जाते हैं। बाई एयर का ये होता है, अगर आपको कोई इमरजेंसी केस है, कोई पता है कि हाँ प्रॉपर टिप है कि यहाँ मुस्लिम बैठा में जाके उठाना है, तो उसके लिए तो मैं फिर भी मुहिम से भी कहूँगा, प्रशासक से भी कहूँगा कि आप उसके लिए एक बार दोबारा जरूर सोचें कि जो इमरजेंसी के केस होते हैं, जहाँ हमें जल्दी पहुँचना है। लेकिन हमने अभी बात की है, जो चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर है और पंजाब के गवर्नर है, उनका बड़ा क्लियर कहना है कि अगर जाना भी पड़े बाय एयर तो नॉर्मल में जाओ, बिजनेस क्लास में ना जाओ। क्यों बिजनेस क्लास में जाते हो? अगर जाना भी पड़ता है तो आपको क्या लगता है, वो तो पहले ये डिसीजन के लिए ऑलरेडी कह रहे हैं कि अगर इमरजेंसी में जाना पड़ता है नॉर्मल क्लास में जाओ। हाँ बिल्कुल, नॉर्मल क्लास में, बिजनेस क्लास में क्यों? मैं अगर आज एक काउंसलर हूँ तो क्या मैं पब्लिक के पैसे के साथ बिजनेस क्लास में ट्रैवल करूँगा? नहीं। आपको एक ज़रूरी चीज़ होती है कि मुझे इतना काम बहुत ज़रूरी है, वो काम हमारा नॉर्मल इकोनॉमिक क्लास में बैठ के सर सकता है, तो वैसे ही होना चाहिए। लेकिन आज एक विडंबना और है गुरप्रीत जी, आज ये स्टेप क्यों उठाने पड़ रहे हैं? आज मैं आपको 2 डायलॉग बताना चाहूँगा। आपने जैसे फिल्में देखी होंगी, उसमें बॉम्बे में जाता हूँ, फिल्म में पुलिस दिखाते हैं, बॉम्बे की पुलिस दिखाते हैं, उसमें एक डायलॉग होता है, सद रक्षण नायक खल निग्रह नायक, के सच्चे लोगों की, आम पब्लिक की रक्षा करने के लिए और दुश्मनों को, जो आरोपी हैं उनको मारने के लिए पुलिस हमेशा साथ खड़ी है। और चंडीगढ़ में हमने नारा पड़ा है, वी केयर फॉर यू, चंडीगढ़ पुलिस का है। तो क्या आज ये चीज़ हो रही है? पहले तो सिर्फ पुलिसों, बॉम्बे की फिल्मों में दिखाया जाता था कि अभी जो पुलिस है वो डकैती कर रही है, लेकिन आप आज यहाँ देखें चंडीगढ़ के अंदर वी केयर फॉर यू में कुछ ऐसे अफसर हैं जो डकैती कर रहे हैं। पीछे 1 करोड़ का मसला जो उठा, जिसे देखकर आज ये सारे डिसीजन आने में लिए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, जो डिसीजन लिया है गवर्नर साहब ने, जो चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर भी है, तो क्या ये डिसीजन सही लिया है? क्योंकि पब्लिक मनी है, वो कहते हैं कि पब्लिक की मनी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही डिसीजन लिया है जी, हम इसके साथ हैं। और उन्होंने अगर खुद ही ऐड कर रखा है कि भी जो इमरजेंसी के केसेस हैं, जहां हमें तुरंत पहुंचना है, अगर वहां जा सकते हैं तो वो अच्छी बात है। नहीं तो जो फिजूल खर्ची है, 5 स्टार होटल में केयर रहने की जरूरत है जी। कितने लोग पुलिसिंग में आने से पहले 5 स्टार होटल में रह रहे थे। तो अभी बात की जा रही है कि जो रोड्स है वो नहीं बने, तो क्या लगता है कि पब्लिक मनी रोड्स पे यूज करनी चाहिए बजाय कि जो वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेने के लिए? आप एक चीज़ देखिए, आज चंडीगढ़ के अलावा कितने ऐसे शहर हैं जो मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह से निकल रहे हैं, बट ये आज हम 35 में खड़े हैं। अगर आपने एक 17 सेक्टर तक जाना है तो आपको कितनी लाइट पॉइंट फेस करनी पड़ती हैं, उस पार्किंग प्रॉब्लम, ये जो फंड्स हैं इनको आप यहाँ पे लगाओ। So well, if we can talk about the Chandigarh All right, people and, Gurpreet, many thanks for getting us the voices of the people from the ground. Of course, the Congress workers were speaking with you.